یعنی شان کے موافق کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت مفتی محمد قاضی صاحب سکندری ازہری. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا وملجأنا ومأوانا ونورنا ونور ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. عربی عرش کھاویو متھے مہمان رب جو تھیو متھے یہاں کو نکو تو بیو متھے بلغ العلا بکمالی. بہت اچھا. سبحان اللہ. دل جی دعا منظور تھی دنیا کا ظلمت دور تھی ویو ملک سارو نور تھی کشفت دجا بجمالی. اوصاف ان کے جو بیان کہڑو کرے عاجز زبان مولا اگئی جو مدح خواہ حسنت جمیع خصالہ. ادریس جی سب کے صدا آباد بہی التجا
مومن پڑھو صبح و شام صلو علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك سلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله الہی تو عاشقن جی الہی تو عاشقن جی اہلی خلقی ذات الہی تو عاشقن جی اہلی خلقی ذات کہ وہن واٹن تے کہ جاگن ساری رات پڑا بھٹی پر بھات ونی بیلو کن محمد سی چھالا ونی چھو تو بیلی تھیے بن جو چھالا ونی چو تم بیلی تھیں بن جو وٹھ کنجک رب کریم جی جگ جو والیا جو پوسو کھو دو سو جائیں جو عشق اللہ سی بہت اچھا سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك سلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم واجب الاحترام ذوی الاحتشام حضرات علماء کرام بالخصوص عزت و وقار کی مسند پر جلوہ گر صاحب صدر گرامی قدر تاج العلماء زینت علماء علامہ تاج الدین صاحب قبلہ سہروردی مد ذلہ النورانی و دیگر علماء کرام بالخصوص عالی جا حضرت مولانا ایوب صاحب و دیگر علماء سبیل احترام و سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل جلالہ امن والہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اے میرے بندو، جب میں نے زمین کو پیدا فرمایا، اس دارے گیتی کی جب میں نے بناوٹ کو سنوارا، جب میں نے اس دھرتی پر رہنے کے لیے انسانوں کی تخلیق کی، جملہ میری مخلوق کو پیدا فرمایا، تو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے فرمایا اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی، یہ خالق کائنات اللہ جل جلالہ امن والہ ساری کائنات کا خالق، اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی، قادر پہنچی قدرت سی قائم آہے کدی۔ شاہ لطیف بھٹائی فرماتے ہیں جس ذات نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، انسانوں کے رہنے کے لیے زمین کو فرش بنایا،
आसमान को साहिबान के तौर पर तखलीक फरमाया, रहने के लिए इंसानों को पैदा फरमाया, हवा देने के लिए हवा को तखलीक फरमाया, दरख्तों को छाव के लिए पैदा फरमाया, इंसानों और जानवरों को पीने के लिए पानी को पैदा फरमाया। लेकिन सारी कायनात का खालिक, सारी कायनात का मालिक कदीर, यानी रब की जात की कोई उम्र नहीं। रब की जात पहले थी, आज है, हमेशा रहेगी, इला अबदिल आबाद, हमेशा रहेगी। रब की जात की कोई उम्र नहीं, हमेशा से है। अव्वल अल्लाह अली, आला आलम जो धरी, कादिर रहेगी कुदरत सी, कायम आहे कदीर, वाली वाहिद वहदहू, राज़िक रब रहीम, सो सारा सचे धनी करे पार करीम, जोड़ू जोड़ जहां। जब रब पाक ने सारी कायनात को पैदा फरमाया और पैदा करने के बाद जो सारी कायनात की बनावट को बनाया, अब शाह साहब फरमाते हैं जोड़े जोड़ जहान की जब ही जोड़िया खावत खास हल की मोहम्मद मुकाई कलिमू बन हबीब के चिटो ते आई अना मौला का अंत महबूबी ये उताई वो लिखे दिनाओ बड़ी सलाम सैयद के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब रब पाक ने कायनात को पैदा फरमाया, वो कायनात को पैदा करने के बाद दूल्हे की शक्ल में अपने महबूब को मबऊस फरमाया। ए मेरे महबूब, तुम दुनिया में जा रहे हो, कुरैशी खानदान के सबसे आला खानदान, लेकिन ए मेरे महबूब, मैं तुम पे पैगाम भेज रहा हूँ, वो जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू। ए मेरे बंदो, मेरे महबूब बंदों से फरमा दो, मैंने तुमको अलग अलग कबीलों में पैदा फरमाया, अलग अलग जातों में पैदा फरमाया। क्यों? लितारफू, ताकि एक दूसरे को पहचानो। ये जात का राजन है, ये जात का दर्स है, ये जात का ममिया है। ए मेरे बंदो, इन जातों को मैंने सिर्फ पहचानने के लिए पैदा फरमाया। फिर फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ए मेरे बंदो, मैं जात नहीं देखता, मेरे यहाँ जो ज्यादा अच्छे काम करता वही ज्यादा इज्जत वाला है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कुफू वाला मसला ज्यादा करता, फला जात की बच्ची वहां जाएगी, फला की वहां जाएगी, ये कुफू और वाजिब। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के जमाने में शाह इलाज थे बुजुर्ग, उन्होंने पूछा खलीफों कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जाएंगे भिट के घोट के पास, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के पास। उस जात के सैयद थे। तो शाह इलाज ने कहा ओ मुरीदो, जब तुम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के पास जाओ तो उनसे मेरा पैगाम कहना, उनको मेरा पैगाम देना, उनको मेरी बात सुना देना। क्या कहना है? मुरीदों ने रस की। शाह इलाज ने फरमाया ओ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, तू जात में सैयद आई, तू नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद माही, पर कोरिया मोती जनजा पीर, कोरिया मोती जनजा पीर की लगा हिंदा सी रोखी बेचाई जाए। वाह वाह, बहुत अच्छा। वो शाह लतीफ भिटाई जात के सैयद थे, लेकिन तुमने अपने मुर्शिद को, जो मुर्शिद चुना वो कोहरी जात का चुना। जिस मुर्शिद पीर मुरीद का पीर कोहरी जात का हो वो कुछ नहीं दे सकता, जिसका पीर कोहरी मोती हो कि लगा हिंदा सीर ओकी मिठाई ना देवे। जिसका पीर कोहरी होगा वो कभी भी मुश्किल के वक्त काम आ ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा। जब वह मुरीद पहुंचे, शाह लतीफ भिटाई को बात सुनाई। शाह साहब ने कहा वापस कब जाओगे? उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद, कि जब जाओ तो मुझे मेरा पैगाम लेके जाना। कि ठीक है। जब वापस रवाना हुए, शाह लतीफ भिटाई ने शेर लिखा, ओ शाह इलाज, तू चली तो जही कोरी मोदी गंजा पीर की लगाई दा सीर ओकी मिठाई ना देवे। अब मेरा भी कौन सुना देना? शाह लतीफ भिटाई ने कहा क्या कहो? उन्होंने कहा राणे बैठा रात आज मुखे नौनिया को आयो लगाऊं अब्दुल लतीफ देवे तातर निगाहूं डाज कौन पूछाऊं साथ
आ गया, राजा तू आ गया, मंगली आ गया, दस पीछे जा, और तू खास के लिए पीछे जा, फला जात का नहीं, शालती भिटाई देगा। रब की जात कभी जात नहीं पूछती, रब की बारगाह में जो चल के आता है रब उसका मेरा पार फरमा दो। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राणा मठारा अज मुखे नौ मिया को आयो, लखाओ अब्दुल लतीफ जले, दातर बिना उंदाज, को मैं पूछाऊं जात दे आया से अगजी बया। अफगानिस्तान का सूबा गजनी, महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ मंदिर पे 23 मरतबा हमला करके इस्लाम को हिंदुस्तान में दाखिल किया। जब महमूद गजनवी गजनी में बैठता था, गजनी एक सूबा राज्य स्टेट अफगानिस्तान का, जैसे तखार है, मजार शरीफ है, पंजशेर है, परवान है, गजनी भी सूबा। महमूद गजनवी सुब्तगीन का बेटा, गुलाम का बेटा बादशाह बना। 1000 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। महमूद गजनवी तख्त पे बैठा, हजारों कनी से हाथ बांध के खड़ी, हजारों वजीर हाथ बांध के खड़े, बादशाह सलामत तख्त पे, उनका गुलाम था अयास, वो दूर कोने में खड़ा होता था। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा, हमारी नाखुदाई की हकीकत कोई क्या जाने, जमीने खुश्क पर रखकर चलाती कश्तियां हमने दी जाने, कभी यूरोप में कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहाराओं में, शाम आंखों में दश्ती थी जहां तारों की कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों के। आ गया ऐ लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, या रब तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा, महमूद गजनवी गजनी का बादशाह, अयास गुलाम दूर कोने में खड़ा, लेकिन जब अजान होती लोग नमाज मस्जिद की तरफ चलते, इमाम भी मस्जिद पहुंचा, बादशाह मस्जिद पहुंचा, वजीर मस्जिद पहुंचा, गवर्नर मस्जिद पहुंचा, मिस्कीन पहुंचा, सफाई करने वाला मेहतर पहुंचा। लेकिन जब सब सजदी थी, सब नमाजी खड़े हुए, तो अल्लामा इकबाल ने कहा, जब तक मस्जिद से बाहर थे तो कोई बादशाह है, कोई गुलाम है, कोई बादशाह है, कोई डोका है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। लेकिन जब मस्जिद में पहुंचे, सफे सजी लोग खड़े हुए, तो अल्लामा इकबाल ने कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, और कोई बंदा रहा न बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, या रब तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मालिक क्या तेरा कर्म है, बाहर थे तो अलग अलग तफरीक थी, इख्तिलाफ था, जात पात का तफावुत था। मालिक जब मस्जिद में पहुंचे, जिस सब में बादशाह खड़ा है उसी सब में राज गुलाम भी खड़ा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए, रब की जात नहीं पूछती, जात के बात ना है। गौसुल हक वद्दीन, बहाउल हक वद्दीन, शेखुल इस्लाम, आपको हमको पता नहीं शेख इस्लाम किस दर्जे का नाम है। बहुत अच्छा। शेखुल इस्लाम हज़रत ज़करिया मुल्तानी कुरैशी, बड़ी जात है। यहां चले आओ, यहां जो बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, किस जात के? सिकत नहीं, और कोई जात नहीं, सिंधी जात है, हमारी जातों की तरह। आज लोग परवाना बार चल के क्यों आ रहे, क्या वजह है? तो शाह लतीफ भिटाई से पूछते, शाह साहब कहां बुझायो, इहा मारू जेका इस्तेहाम करेगा खान छा देगा, छा मसले यहां तो साईं फरमाइन का शाह लतीफ भिटाई बीनताई दस पीरिय जो लस लयू लाड़ा खतूरी हाना हितम हो भलावा, जमीन पे रहकर अच्छे काम करेगा, इबादत करेगा, रब को राजी करेगा, तो दुनिया से तू अलविदा करके दुनिया को रुखसत होके चला जाएगा, तो तेरी कब्र पे कई सौ साल तक लोग सलाम पेश करते रहेंगे, तेरी मिट्टी से खुशबू आएगी। शाह साहब ने कहा, सारी रात सुबहान जागी दिल याद करो, उन्हें की अब्दुल लतीफ जवे मिट्टी लथो मान, कोड़े कम सलाम अची आगे उन्हें। बहुत अच्छा। आप देखिए, शेखुल इस्लाम
कैसे बने? बड़े बाप के बेटे थे नहीं, आलीजा मर्तबे पर खाई थी इसलिए नहीं, कुरैशी थे इसलिए शेखुल इस्लाम नहीं, वो शेखुल इस्लाम इसलिए बने कि घाट घाट का पानी पिया, तर तर की खाक छानी, कभी बुखारा पहुंचे, 5 साल तक मदीने में दर्स और तदरीस करते रहे, यमन पहुंचे पढ़ने के लिए। आप कहां जा रहे हैं? बाड़मेर। क्यों जा रहे हैं? काम के लिए। दिन में मजदूर मजदूरी करता, फावड़ा उठाता है, तगार उठाता, मिट्टी उठाता, शाम को 500 रुपए मिलते। लेकिन जो बंदा दिमाग चलाता, जिसके पास एजुकेशन पढ़ाई है, जो लोग कंप्यूटर पे बैठते बिजनेस करते, एक सेकंड के अंदर करोड़ों रुपए कमाते। जिन बुजुर्गों से हम जुड़े हुए हैं वो तो इल्म की वजह से रोशन हुए थे। यमन के पढ़ने के लिए मदीना हाजिर थी, हुजूर अलैहि सलाम की तहरीफ में गए, पढ़ रहे पढ़ा रहे, पलट के जब आए बगदाद, यह है अल्लाह के वलियों का जो मर्तबा है वो हर कोई पहचान नहीं सकता। प्यारे चलते हैं शहबाज कलंदर के पास। जब वो सेवर शरीफ पहुंचे तो बुजुर्ग ने कहा कहां जाओगे? जाऊंगा सिंध में। तो कहा कि आप यहाँ सिंध रुक जाओ, आगे पंजाब मत जाओ। क्यों? इसलिए कि आपकी जरूरत यहाँ है। उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए आप जहां भी रहोगे फूल बन के रहोगे। शहबाज कलंदर ने शादी नहीं की, इंतकाल का वक्त करीब आया, खलीफे को बुलाया, वो खलीफा मां सतो वो तो आया, मां शादी का न कहिया। जब मां मुझी रूप परवास करी बने तो मुझा कपड़ा न लाई जो इन्हन कपड़न मन मुखे गुसल कफन दे, योही कफन यो गुसल नहीं मुखे दफनाए चले, कपड़ा न लाई जो। वाह, इंतकाल हुआ, मौलवी साहब पहुंचे। मौलवी साहब क्या करना? कि कपड़े उतारूंगा। उन्होंने कहा नहीं, कपड़े नहीं उतारने। शहबाज कलंदर, ये शेखुल इस्लाम हज़रत ज़करिया मुल्तानी के एक जमाने के हम असर, दोनों का जमाना है। शहबाज कलंदर ने मना किया, कपड़े मत उतारना। इंतकाल हो गया, खलीफा खड़ा है। खलीफे ने कहा मौलवी साहब, शहबाज कलंदर ने तो मना किया, उस्मान मरवंदी नाम था, उस्मान साहब ने मना किया, मेरे कपड़े न उतारना। मौलवी साहब बिल्कुल जिद्दी थे, उन्होंने कहा नहीं, कपड़े उतारूंगा, गुस्ल दूंगा, नया कपड़ा दूंगा, फिर जनाजा पढ़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। खलीफे ने कहा साहब आने का मौलवी साहब है ताकि खप्पे जाओ करो। एक कपड़ा उतारा, दूसरा पड़ा, दूसरा कपड़ा उतारा, तीसरा पड़ा, तीसरा कपड़ा उतारा, चौथा पड़ा हुआ, 25 कपड़े उतार ली। मौलवी की जिद्दी था, जिद थोड़ी। वाह वाह वाह, क्या जलवा है मेरे। अब फकीर ने कहा, शहबाज कलंदर ने सोचा यार तरीका तो ये था, जब फकीर की रूह परवास की, दुनिया को अलविदा कहा, जब फकीर की रूह कब से उसी से परवास की, अब फकीर चला गया, अब वापस छेड़ना नहीं था। लेकिन मौलवी जिद पे जिद करता जा रहा, कपड़े नहीं छोड़ा है। जब कफन पे तो कपड़े उतारता जा रहा, तो शहबाज कलंदर ने आंख खोली, मौलवी का हाथ पकड़ा, कहा अयामुल्लाह मकुन साहिर सिर असरार मरतारा नमी तानी दानिस्ती के सिरुल्लाह बुदस्तम वकोहे तू बांगुसा कलीमुल्लाह बुदस्तम। फारसी ने कहा अबे मुल्ला जिंद छाते बाबा जान छाते माल्ला जो वलिया माल्ला जे राजर माहिब राजा तेरे कोहे दूर के मथा अल्लाह मूसा सा गाल कर हुई, शाबाश कर उनकी गाल बकुदी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मौलवी साहब आज आप पैदा हुए हो, हमारे नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम। शहबाज कलंदर मेरे मौलवी साहब, मिस्र में कोहे तूर है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, कोहे तूर पर जब मूसा अल्लाह से बातें करते थे, शहबाज कलंदर उनके पास बैठ के उनकी बातें सुना करता था। बहुत अच्छा। फकीर को नचे। हजरत ज़करिया मुल्तानी यमन होके बगदाद पहुंचे, इराक में। जब वहां पहुंचे 17-18 दिन में हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आला पाए के बुजुर्ग
दे रहे, इजाजत दे रहे। किसी ने पूछा आपके यहाँ आने के लिए, आपके सामने बैठने के लिए, आप तक मकबूलियत हासिल करने के लिए कई कोशिशें करनी पड़ती है, लेकिन जब ये ज़करिया मुल्तानी आए, आपने इतने दिनों में खिलाफत क्यों दी? तो शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, आपको पता नहीं ये जो बंदा चल के आ रहा, घाट घाट का पानी पीकर, सफर में इसकी सऊबतें बर्दाश्त करके आज मेरी दहलीज तक आया है, मेरा इल्म कहता है आगे चल के जिस धरती पे पहुंचेगा, इल्म के चश्मे फूटेंगे, वहां रहमत की बरखा छम छम बरसना शुरू होगी। मेरा इल्म कहता है मुल्तान की धरती पर जब ये बुजुर्ग पहुंचेगा तो चौधरी का चांद बन के पहुंचेगा। मेरा इल्म कह रहा है, इसलिए मैंने इतनी जल्दी खिलाफत से नवाज दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हज़रात इल्म पढ़ के आए थे, इल्म पढ़ा था, उनके इल्म में उनको काम किया। ये मर्तबा इल्म का है, जात पात का है ही इस्लाम में। ये बंदों में तुम सबको अलग अलग कबीलों में पैदा किया, अलग अलग जातों में पैदा किया, एक दूसरे की पहचान के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, परिचय के लिए। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरे बंदो मेरी बारगाह में सबसे ज्यादा करीब नेक वो है जो अच्छे काम करता है। बहुत अच्छा। हज़रात हम और आप अगर मुर्शिदों की गुलामी का दम भरते हैं, उनके दामन से वाबिस्ता है, हम अगर चाहें कि जब दुनिया से पलट के जाए, कब्र में रखा जाए, तो याद रखें यहाँ से जाने के बाद कोई पलट के वापस नहीं आता। चलते हैं पंजाब, मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी ने कहा था, ईदा ते शब रातां आईयां, सारे लोग घरानों आए, ओ न आए मोहम्मद बख्शा जेड़ा आप हथी दफन आए। मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था, ईद आएगी, शब बारात आएगी, तो बुजुर्ग चल के आते हैं दहलीज के लिए। ईद के मौके पर जितने भी लोग जवान बाहर जाते, ईद को वापस आते, लेकिन जिन लोगों को कंधों पे उठाकर हम जमीन के सुपुर्द करते, खाक के सुपुर्द करते, जिनको हम कब्र में दफन करके आते हैं, वो वापस पलट के नहीं आते। एक गोरा है बहुत बड़ा, उसे किसी ने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है? उसने कहा था कि दुनिया हो, जमीन हो, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ ये है। मैं बताऊं तो बताऊं कि बूढ़े बाप और जवान बेटे का जनाजा इंसान पर तो कयामत बर्पा होती है। अल्लामा ताजुल उलमा को जो गुजरी आप हम सबको पता है क्या गुजरी, लेकिन याद रखें अगर हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का दम भरते हैं तो प्यारे मर के जाना है और पलट के वापस नहीं आएंगे। किसी दोस्त ने कहा था यार कब्र में जाके क्या होता, दूसरे ने कहा मुझे नहीं पता क्या होता, तो चलो जब तू मर जाए कब्र में फरिश्ते क्या पूछते हैं, पलट के मुझे जवाब तेरा क्या था। एक दोस्त इंतकाल कर गया, कई महीने तक खा में नहीं आया, उसने इंतजार किया, कई दिनों के बाद पलट के आया, उसने कहा यार तुझे दुनिया से गए हुए कई दिन हो गए, आज आए हो, इतने दिन कहाँ थे? उन्होंने कहा बता तो सही कब्र में क्या हुआ? तो कहता किन खाए खुलास हर फरा उकले हिंदू। मैं कब्र में पहुंचा, मेरे अमल पूरे थे तो मेरे बलगम या हलक में बलगम अटक गया। ठिठारे खुलास हर फरा उकले हिंदू हिता मनी होते मुक्को कौन जवाब तो हमीरा हिसाब को जाने किए थे। किसी को नहीं पता कब्र में क्या होगा। आपने हमने भी कब्र में जाना, नसीहत हासिल करें। जिन बुजुर्गों से हम वाबिस्ता है, इल्म हासिल किया, इल्म पढ़ा, तो कहां कहां पहुंच गए, गुजरे हुए, इंतकाल किए हुए कई सौ साल हो गए, आज हम यहाँ बैठ के जाते मना रहे। हम भी काम करेंगे अच्छे, दुनिया से तल के जाएंगे, कब्र में पहुंचेंगे तो रब की रहमतें बरसेगी। हुजूर आएंगे फरमाएंगे ये तो मेरा गुलाम दुनिया में रहते मुझ पे दूर पड़ता था, मेरे पता ही तरीके पर चलता, फरिश्तों दूर हटो, मेरा गुलाम इसको आराम से सो दे। तो शाह साहब ने फरमाया था अगर हुजूर की गुलामी का दम भरोगे, हुजूर की गुलामी पक्के तरीके से निभाओगे तो हुजूर आएंगे वजा वड़ वड़कार जा मुंह पानी खयो न पाव एक जबल जलदायु करे तो
नजदीक जवे कया हे करम हीरा जिते कुर्ब न कबीरा उते रसद अगर रोड बहुत वाली कब्र में जाऊंगा हुजूर की जात आई वो जब आएंगे तो क्या होगा मानक मिट समो उठाई में सो जरो हशर मेल हिसाब में छने न दीदो सारे सद कनो मुझे को यार होके बहुत अच्छा दुनिया में रह के गुलामी का दम भरोगे तो क़यामत के दिन भी हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब होगी। हज़रात आपके यहाँ बैठने वाले ताजुल उलमा आपको हमको सिंधी सही बोली नहीं आ रही है तो हम आगे लिखते हैं सिंधी बाद में हमको धाती भी सही से नहीं आती और आपके दरमियान बैठने वाले मुअक्कर शख्सियत अरबी बोल रही है कैसे बोल रही है इतनी बड़ी जात आप मालूम करते हैं अरबी क्यों बोल रहे हैं इसलिए कि इन्होंने इल्म हासिल किया कौन सी ज़बान जो मेरे महबूब मदीने की धरती पर बोला करते थे वो अरबी ज़बान इसलिए प्यारे मेरा अर्ज ये है जहाँ रहे जिस गांव में रहे मदरसे चलाएं स्कूल चलाएं बच्चों को पढ़ाएं तालीम दे तालीम आएगी तो सब चीजें खत्म हो जाएगी वरना सार कात लड़ाई झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। हमारे बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनकी टांगें कब्रों में लटक रही है फिर भी मियां मोहम्मद बशारत खड़ी ने कहा था क्या कहा था हड्डियां कम गोडे खड़कन ते टूट गया लख तेरा जे गुनाह तू बाज न आवे बाबा मर्द दिलेगा। मियां मोहम्मद बशारत खड़ी ने कहा था हड्डियां कम बूढ़ा हो गया अधेड़ उम्र का बचपन भी गया बचपन भी गया अधेड़ उम्र है तेरी हड्डियां कांप रही है हड्डियां कम गोडे खड़कन तेरे घुटने चलता तो बजरे हड्डियां कम गोडे खड़कन ते टूट गया लख तेरा हजे गुनाह तू वासना आवी बाबा मर्द दिलेरा। मियां मोहम्मद बशारत खड़ी ने कहा था बड़ा दिलेरा दिल है बुढ़ापा आ गया कब्र में जाने के करीब है अब भी गुनाह नहीं छोड़ रहा इसलिए प्यारे इन बुजुर्गों की दहलीज पे हम और आपको हाजिरी का मौका नसीब हो रहा है। दुआ करें मालिक हमारे मुर्शिदों ने हमको तरीका बताया है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए तो उलमाए किराम का एहतराम अदब और उनसे फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अल-बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह ये थे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कादी साहब सिकंदरी अज़हरी जिन्होंने सिंधी और उर्दू दोनों को मिला करके अपनी कौम को बेहतरीन अंदाज में समझाया मुल्तान के वाली के मोहब्बत के अकीदत के